हो सकता है ये कॉल आफ्टर, विच मीन्स नेम समवन आफ्टर समबडी एल्स, यानी किसी के बाद अगर नेम देना, दैट इज एक्चुअली नोन एज कॉल आफ्टर, एज दिस आफ्टर वर्ड इट सेल्फ सेज की बाद में, राइट। जैसे एग्जांपल से समझेंगे, शी वॉज कॉल्ड रोज आफ्टर हर लेट ग्रैंड मदर, शी वॉज कॉल्ड रोज आफ्टर हर लेट ग्रैंड मदर, मीन्स इन दिस वे यू जस्ट चेक दिस वन कि कैसे आपने कॉल आफ्टर का यूज किया। सो कॉल आफ्टर, राइट, इस टाइप से आप इस कॉल आफ्टर का यूज कर सकते हैं। नाउ लेट्स हैव नेक्स्ट वर्ड इज कॉल अराउंड और कॉल राउंड, विच मीन्स विजिट, यानी एक कहीं पर विजिट करने के लिए जाना, दैट इज एक्चुअली नोन एज कॉल अराउंड और कॉल राउंड। इन दो में से जो आप चाहे दोनों को यूज कर सकते हैं, बिकॉज कॉल अराउंड मीन्स विजिट, कॉल राउंड मीन्स विजिट, बोथ फ्रेजल वर्ब्स have same meaning, so you can use any one of these two, right? As I called around but she was not in, yani I visited there but she was not inside the room, inside the door या inside the boundary, means she was absent of that place, right? So आप इस टाइप से इस call around का यूज कर सकते हैं, which means visit करना। तो I call around but she was not in, right? Suppose one person went somewhere and he wanted to meet some person but she was not in, she was not there, when she was not there, when I call around her, right? यानी जब मैं वहां पे गया but she was not in, fine। I hope यहाँ पे समझ में आ रहा होगा आपको। Now let's have next one, next is call back। This is actually very common, phrasal verb, everyone just use this phrasal verb, call back, like someone is calling and the voice is not clear, then people just say I'm calling you back, right? यानी कि मैं फिर से तुम्हें call back, मैं तुम्हें call back कर रहा हूँ। So call back means what? Return a phone call, यानी किसी की कॉल को फिर से रिटर्न करना, यानी आपने सपोज कॉल किया और अगला नहीं सुन पाया तो उसने कॉल बैक किया, या आपने फिर कहा कि यार वॉइस क्लियर नहीं आ रही, आई एम कॉलिंग यू बैक, राइट? सो इन दिस वे कॉल बैक मीन्स रिटर्न अ फोन कॉल, लाइक I must call her back when we got to the office, something like this you can use. This is very common, and this phrasal verb is frequently asked in your examination, right? So it's a common use of phrasal verb. So let's have next slide is call for. This is actually very important. People just use this phrasal verb in their conversation, daily conversation, like call for means requirement, it means requirement, right? As call for have so many meanings, as the very first is require, like your plan will call for a lot of money, it means your plan will require a lot of money, right? It needs a lot of money. So in this way you can say require, या आप short में कह सकते हैं need, something like this, right? So your plan will call for a lot of money, that is call for. ये first use था call for का। Now let's have second use of call for, that is demand. This is actually the second use of call for. Yes, exactly. Everyone is typing. Abhishek Sharma ji, yes, you answered correctly. बिल्कुल सही जवाब है आपका। Atul Pandey is also answering. That's really nice. So now let's have the second use of the same phrasal verb, that is demand, right? In the sense of demand, you can use this call for. Like the opposition party called for the minister's resignation after the scandal broke. यानी कि opposition ने क्या किया? Called for किया minister के resignation का. So definitely here you are getting the meaning of this call for demand, right? यानी यहाँ पे call for का meaning क्या निकल कर आ रहा है? Demand निकल कर आ रहा है ना? So something like this you can use this call for also, right? So ये दूसरा इसका use हो गया. Now let's have third use of the same phrasal verb, that is go to collect something. In this sense you can use call for, like the courier called for your parcel but I told him it was not ready yet. So in this way you want to use this call for, you can use in this third way also, right? Now let's have next slide of the same phrasal verb, that is call for. Call for means telephone for something, यानी टेलीफोन फॉर समथिंग, किसी को किसी चीज के लिए कॉल करना, समथिंग लाइक दिस, राइट? टेलीफोन करना, दैट इज ऑल्सो कॉल फॉर। लाइक आई विल कॉल फॉर अ कैब राइट अवे। सपोज आपको कहीं जाना है, आपने कैब को कॉल किया, कैब के लिए लाइक ओला एंड उबर। सो इस टाइप से आपने यहाँ पर कॉल फॉर का यूज किया टेलीफोन फॉर समथिंग के सेंस में। फाइन, नाउ लेट्स हैव नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट phrasal verb, and this is actually the same, that is call for। फिर से यहाँ पर है जिसका एक और मीनिंग निकल कर आता है, go and called someone to take them out, किसी को बाहर जाने के लिए यहाँ पर बुलाना, इनवाइट करना, something like that। like I'll call for you at 7, so be ready because the film starts at 7:30, right? यानी यहाँ पर कह रहा है कि I'll call for you at 7, be ready
because the film starts at 7:30 whatever, right? So in this way call for का यूज आप कर सकते हैं, यानी यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कॉल फॉर किया किसी को at 7 पे, क्योंकि मूवी जो स्टार्ट होती है वो इतने 7:30 पे होती है. फाइन. सो आई होप यहाँ पर आपको क्लियर हो रहा होगा कॉल फॉर के यूजेस. सो इन दिस वे ये 5 आपने देखा 5 यूजेस वो देयर ऑफ कॉल फॉर. इस टाइप से आप कॉल फॉर के बहुत सारे यूजेस है और सारे यूजेस यू मस्ट नो, राइट? दैट्स व्हाई आई हैव mentioned, I have included each and every uses of call for. Next is call for. This is actually very very important, which means make something happen. Call forth means make something happens, and you can use this call forth like this. The protests call forth a strong reaction from the police, right? The protests call forth a strong reaction from the police. तो इस टाइप से आप इसको भी यूज कर सकते हैं, ठीक है? सो देखिए ये जितने भी फ्रेजल वर्ब है ना, ये सारी की सारी फ्रेजल वर्ब्स की एक बार अच्छे से जब आप प्रैक्टिस करोगे ना फ्रेंड्स, तो आपके लिए इसको लर्न करना बहुत इजी होगा, बिकॉज फ्रेजल वर्ब नीड्स प्रैक्टिस टू मेमोराइज. तो थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं. एक बार आप डेली बस इसको एक बार प्रैक्टिस कर लो, नोट्स बना लो. अगर नोट्स नहीं बना रहे हो तो बस वीडियो देख लीजिए आप डेली बेसिस पे 3-4 टाइम्स, आपको लर्न हो जाएगी सारी फ्रेजल वर्ब, ठीक है? नेक्स्ट इज कॉल इन. Call in is actually very very important for your examination. Actually this was the part of close test in SSC exam. ये call in एक बार आया हुआ था, जिसका मतलब होता है get someone to come to do a job. किसी को किसी काम के लिए बुलाना या कहना, ठीक है? To get someone to come to do a job. Like we had to call in a plumber because the sink was leaking and I had no idea how to fix it, right? यानी कि प्लम्बर को बुलाना किस काम के लिए? सिंक को सही करने के लिए, ठीक है? तो इस टाइप से आप कॉल इन का यूज कर सकते हैं, यानी कॉल करना इन में, ऐसे शॉर्ट में समझ सकते हैं. देखो मेमोराइज करने के लिए ट्रिक अगर चाहिए तो इस टाइप से बना सकते हैं. कॉल किया किसी को इन में, और इन मतलब कहाँ के इन? अपने घर के इन में, राइट? सो इन दिस वे यू कैन मेमोराइज दिस कॉल इन वर्ड. फाइन. नेक्स्ट इज कॉल ऑफ. कॉल ऑफ मीन्स कैंसल. एज यू नो OFF मीन्स ये होता है नेगेटिव. ये OFF का मतलब ये होता है जब सेपरेशन होती है कहीं से, देन वी जस्ट यूज दिस OFF, राइट? सो ऐसे अगर देखें तो यहाँ पर ऑफ का यूज वैसे जनरली कैंसिल या एंड के सेंस में होता है. तो कॉल ऑफ मीन्स कैंसिल या एंड. ऐसे देखो शॉर्ट में ये मेमोराइज करने की ट्रिक मैं बता रहा हूँ. सो कैंसिल का यूज कैसे करना है एंड एंड का यूज कैसे करना है, 2 एग्जांपल्स आर गिवन इन फ्रंट ऑफ यू ऑल. लाइक यस्टरडे द स्ट्राइक वाज कॉल्ड ऑफ. तो यस्टरडे द स्ट्राइक एंड्स, राइट? यस्टरडे स्ट्राइक कैंसिल नहीं हुई, यस्टरडे स्ट्राइक का क्या हुआ? एंड हुआ. बट कैंसिल के सेंस में द कंसर्ट हैड टू बी कॉल्ड ऑफ बिकॉज सिंगर वेंट डाउन हैड विद अ बैड केस ऑफ फ्लू, राइट? सो हियर आपने देखा कि ये कंसर्ट जो हुआ वो कैंसिल हुआ. कॉल्ड ऑफ हुआ मतलब क्या हुआ? कैंसिल हुआ. तो इन दिस वे आप कैंसिल के भी सेंस में यूज कर सकते हैं एंड एंड के भी सेंस में यूज कर सकते हैं. फाइन. नेक्स्ट इज कॉल ऑन. कॉल ऑन मीन्स टू पे अ शॉर्ट विजिट. कहीं पर बस थोड़े टाइम के लिए जाना, दैट इज कॉल ऑन, राइट? कॉल ऑन टू पे अ शॉर्ट विजिट, कहीं पर थोड़े टाइम के लिए जाना, दैट इज कॉल ऑन. लाइक एज आई वॉज इन द एरिया आई कॉल्ड ऑन माई सिस्टर इन लॉ, राइट? जैसे कि उसने कहा कि जैसा कि मैं उसी एरिया में था तो इसलिए थोड़ा सा बस मिलने के लिए चला आया. ऐसे लोग बोलते ना यार बस इधर ही थोड़ा सा घूम रहा था, इधर कुछ काम से आया था, सो मैंने सोचा कि आपसे मिलता चलूं. बस मिल लिए, अब 5 मिनट्स मिलने के बाद चले गए, ठीक है? सो दिस इज एक्चुअली नोन एज कॉल ऑन, राइट? अगर कहीं पर मिलने के लिए जाना बट इन अ शॉर्ट वे, इन अ शॉर्ट टाइम, नॉट फॉर लॉन्ग, तो वहां पर आपको यूज करना होता है कॉल ऑन. फाइन. आई होप यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा. टेकिंग नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज कॉल आउट. देखो आउट का मतलब यहाँ पर क्या होता है? आउट करना, बोलना. सो अटर सडनली, अटर मीन्स होता है अटर करना, बोलना, एंड सडनली मीन्स होता है सडनली मतलब जल्दी से, अचानक, ठीक है? सो यहां पर आपने देखा देयर इज नथिंग लेफ्ट बट टू कॉल आउट द नेम ऑफ हिज ओन विलेज. कुछ भी नहीं बचा बट टू कॉल आउट द नेम ऑफ, अब सिवाय अपने विलेज के नेम को लेने के सिवा, ठीक है? सो इस टाइप से आपने देखा कि अटर सडनली के सेंस में आप कॉल आउट का यूज कर सकते हैं. एंड आउट लर्न करना है तो आउट होता है कोई भी चीज, और आउट कहां से करना है? माउथ से. क्या आउट होगा? वर्ड्स आउट होंगे, साउंड्स आउट होंगे. कहां से? आपके माउथ से, ठीक है? सो इन दिस वे कॉल आउट को आप मेमोराइज कर सकते हैं. नेक्स्ट कॉल अप. कॉल अप मीन्स रिकलेक्ट. रिकलेक्ट मीन्स रिमेंबर, याद करना किसी चीज को. कॉल अप समथिंग लाइक दिस, ऐसे आपको मेमोराइज करना है. कॉल अप, राइट? सो लाइक द ओल्ड मैन वाज नर्वस so he could not call up the past event of his life. So he could not call up the past events of his life because he was nervous. He could not remember the past events of his life because he was nervous. तो in this way आप कर सकते हैं
यूज करेंगे खुद के सेंटेंस में, खुद से बना सकते हैं। आई कैन नॉट कॉल अप माई पास्ट इवेंट, आई कैन नॉट कॉल अप माई चाइल्डहुड टाइम। सो इस टाइप से आप इसका यूज कर सकते हैं। फाइन, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट इज कॉल अप। अगेन कॉल अप, एज कॉल अप मीन्स रिकलेक्ट एंड कॉल अप मीन्स टेलीफोन ऑल्सो, राइट? लाइक आई कॉल्ड हिम अप एज सुन एज आई गॉट अ फोन टू टेल हिम द न्यूज। तो कॉल अप मीन्स कॉल अप, लाइक कॉल बैक मीन्स कॉल बैक करना एंड कॉल अप मीन्स कॉल करना, ठीक है? कॉल बैक में तो सेकंड वाला होता है, जैसे एक ने एक बार कर दिया तो अब आप कॉल बैक करो या सेकंड पार्टी कॉल बैक करे, वो सेकंड कॉल को कॉल बैक करेंगे, राइट? बट हियर क्या है, कॉल अप मीन्स फर्स्ट वाले को बोलते हैं, ठीक है? जो फर्स्ट कॉल है दैट इज कॉल अप एंड जो सेकंड कॉल थी दैट वाज कॉल बैक। फाइन, so in this way this was actually the use and the difference between call up and call back. Now let's have next slide. Next is call at. Call at means visit also. अभी देखो यहाँ पर भी visit आ गया, बट इस जगह पर visit का मतलब क्या है? To come to meet, यानी कहीं से मिलने के लिए आना। That was जाना and here is आना। Fine, like he called at my house last evening unexpectedly. So कोई किसी के घर पे मिलने के लिए आया, सडनली आया, कोई ऐसा प्लान नहीं था, सडनली वो आया और उस मिलने के लिए। फाइन, सो दिस इज एक्चुअली नोन एज, दिस इज एक्चुअली ऑल्सो विजिट, बट कॉल एट मतलब आना मिलने के लिए। फाइन, नेक्स्ट इज कॉल अपॉन। कॉल अपॉन मीन्स टू बी आस्क्ड, किसी से किसी काम के लिए कहा जाना, ठीक है? आस्क मीन्स पूछना नहीं है, यहाँ पर कहना है किसी से, टू बी आस्क्ड, कहा जाना किसी से किसी काम के लिए, दैट इज कॉल अपॉन। लाइक यू विल बी कॉल्ड अपॉन इन द कोर्ट टू गिव एविडेंस, यानी तुम्हें कोर्ट में एविडेंस प्रेजेंट करने के लिए कहा जाएगा, यानी लाया जाएगा, समथिंग लाइक दैट। So in this way, call upon means to be asked. In this sense, you can use this call upon. Fine. I hope आपको समझ में आ रहा होगा. Next, call on. Call on means ask for help. Help के लिए किसी से कहना, request करना, something like that, right? So here, call on means ask for help. जैसे the president call on the wealthy countries for financial aid. Aid means help. After the floods destroyed much of the country's agriculture. जैसे कि आप देख रहे हैं कि the president call on the wealthy countries से हेल्प के लिए बोला जब वहाँ की एग्रीकल्चर पूरा डिस्ट्रॉय हो गई थी, ठीक है? जैसे आपको पता ही होगा फ्लड आया था जब उत्तराखंड में, तो वहां पर भी ऐड दिया गया था, अलग अलग स्टेट्स ने वहां पे दिया था, यूपी ने भी दिया था, हर जगह से वहां पे हेल्प पहुंची थी, तो उसके लिए हम क्या बोलेंगे? कॉल ऑन, ठीक है? अगर वहां की गवर्नमेंट ने हेल्प मांगी तो उन्होंने क्या मांगा? उन्होंने कॉल ऑन किया। फाइन, नेक्स्ट इज कॉल ऑन। अगेन कॉल ऑन विच मीन्स चैलेंज। सो यहां पर ये आपका इसका मतलब फिर से होगा चैलेंज। जैसे आपने कहा ही कॉल्ड ऑन द स्पीकर ऑन सेवरल मिस स्टेटमेंट्स ऑफ फैक्ट, तो दिस इज एक्चुअली इन द सेंस ऑफ चैलेंज, ठीक है? सो यहां पर आपने देखा किस तरीके से यहाँ पे ये कॉल ऑन की टू मीनिंग्स थी। पहला था आस्क फॉर हेल्प एंड सेकंड वाज चैलेंज। फाइन, आई होप यहां पर आपको समझ में आया होगा कि कैसे कॉल फ्रेजल वर्ब का यूज करते हैं। ये 19 फ्रेजल वर्ब्स, जो 19 आपने देखे यहाँ पे, 19 काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए। जस्ट प्रैक्टिस दीज 19 फ्रेजल वर्ब्स मोर एंड मोर, जितना ज्यादा हो सके इनकी प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि ये आपके एग्जाम में क्लोज टेस्ट, एरर डिटेक्शन, ऐसे करके बहुत सारी चीजों का पार्ट हो सकते हैं, फिलर्स का पार्ट हो सकते हैं। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपका SBI हो, IBPS हो, SSC हो, पुलिस हो, किसी की भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो, आपके लिए फ्रेजल वर्ब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एरर डिटेक्शन सब जगह आता है, क्लोज टेस्ट सब जगह आता है, फिलर्स हर जगह आता है। फाइन, सो आई होप यहाँ पर आपको पसंद आया होगा। पसंद आया दोस्त तो एक लाइक तो बनता है, कमेंट करके जरूर बताइए कैसा लगा आपको आज का वीडियो। शेयर करना ना भूलें अपने दोस्त एंड फ्रेंड्स रिलेटिव से, सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल को। फिर मिलेंगे नए शो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।